एक साथ now ready to write a new chapter in the development. For millennia, this land has been an. I also request Mr. Pankaj Diwan, President Industries Association Nimrana, and VP Dekin to welcome our national magazines are, including Forbes and Business India and Business World and all, because media के support से I think ये जो है हिंदुस्तान का undoubtedly सबसे best जो है investment destination है manufacturing के लिए। यहाँ हमारा जो पहला investment आया था, एक फैक्ट्री आई, फिर मैडम ने हमें ऑलमोस्ट फोर्स किया कि दूसरी फैक्ट्री आप बाहर ले जाने ही नहीं देंगे, आप विश लिस्ट दीजिए हमें, और वो विश लिस्ट पूरी हुई। For travel, despite that you have taken out time from your busy schedules and you are present here for signing of the MOU ceremony. That speaks volume about your commitment for the investment in the state. It's a dream come true. I recollect when I was MD from the year 2005 to 2008. We had signed I am one of the signatories of the MOU signed with JETRO. Mr. Yusuyuki is here. So Mr. Noguchi was the Director General at that time, and the journey began at that point of time. And when we had large number of conferences, and our Honorable Prime Minister had, while meeting with the Japanese Prime Minister in the year 2005, he had mentioned about the industrial area which could be taken up in the NCR area. So it's a dream come true. Today we have about 47 units which are functional here, and as we all are aware, it's basically the technology which marks the difference between Japanese and the other investors across the globe. The perfection, the technology, the quality, the zero resilience for error, that's where the Japanese industries are different from rest of the industries. And the manufacturing base, once it comes up in one part of the state, it develops that culture and the ecosystem. We have the presence of Honda in Bhiwadi industrial area. We have here Nissin Brakes, which was the first unit in Japanese park, and large number of them then followed up. So I'm sure that kind of confidence which you all have expressed in the state government and in RICO would continue, and as Mr. Java has mentioned, the Gilot area has also been opened up. Sir, I would like to mention that in this industrial area we have land of 1150 acres, and state-of-the-art infrastructure was created here. We have 12-lane roads, we have taken care of safety with the CCTV close monitoring of the whole industrial enclave. And we also have a Japanese hotel which caters to your taste, and also the facilities like common facility center and this manufacturing excellence center. This will go a long way in developing the Japanese zone in the area. I would also like to mention that state government is organizing Invest Rajasthan in October on 7th and 8th. As a precursor to that, as Japan has not yet opened and we cannot really send our delegations and have physical dialogues there, I would request all our friends here who have come from different companies of Japan to please talk to your friends there. Ask them that once the opening up of travel happens in Japan, then they could come and visit the Gilot area. The journey, as mentioned by my colleague Mr. Raka, which started in 2006 with the signing of MOU with JETRO, has been smooth, mutually respectful, and mutually beneficial, sir. It is the strength of this relationship that 11 MOUs that are being signed today, 8 of to attend this MOU signing ceremony, which would be a successful start of Invest Rajasthan 2022, scheduled in October. This year marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic Shrimati Shakuntal Rawat, Honorable Industries and Commerce Minister,
honorable members of the cabinet of Rajasthan, distinguished members of the government of Rajasthan, distinguished CEOs and representatives of Japanese companies, ladies and gentlemen, namaskar and good evening. Thank you very much for this opportunity to join this ceremony. Actually, this is my third visit to Nimrana Industrial Park, and every time I come here, I'm impressed by dynamism and enthusiasm of this place. First of all, I'd like to thank the government of Rajasthan for hosting this event dedicated to the relations with Japan in this commemorative year of 70th anniversary of the establishment of Japan-India diplomatic ties. I would also like to express my gratitude to the government of Rajasthan for various efforts it has made to attract and hold. Our relationship is not just any other bilateral relationships, but an exceptional one, which is framed as a special strategic and global partnership. I think it is still fresh in our memory that Prime Minister Kishida of Japan visited India in March. This was the first Prime Minister's visit to India in the past 4 years and a half. Honorable Prime Minister Modi also visited Japan this May. These reciprocal visits in a short period of time have taken our bilateral relations to the next level and brought our two countries even closer. There has been significant progress made in the economic relationship between our two countries in recent years. At the Japan-India summit meeting in March, two prime ministers expressed satisfaction that the investment target of 3.5 trillion Japanese yen, which amounts to approximately 2 lakh crore rupees, announced in 2014, has been successfully achieved in 5 years. Then furthermore, two leaders expressed their shared intention to realize public and private investment and financing of 5 trillion Japanese yen, which is equivalent to 3 lakh crore rupees from Japan to India in the next 5 years. Given this background, it is quite timely that the government of Rajasthan and 11 Japanese companies sign MOUs for investment today, totaling 1,300 crore rupees and creating over 2,200 jobs here. I'm particularly pleased that one Japanese company has made a commitment to invest to the Gilot Industrial Park for the first time, as Mr. Murahashi mentioned. I hope many other Japanese companies will follow and come to Gilot Industrial Park. In this regard, I appreciate the Rajasthan government has been offering very effective incentives and hospitality and faithfully working together with JETRO and Japanese companies to promote the investment of Japanese companies to the state. Thanks to these efforts, the number of Japanese business establishments in Rajasthan has increased from 10 in 2008 to 170 in 2021, which is amazingly 17 times. The Rajasthan government will continue to carefully listen to the voices of the Japanese companies and promote the further development of the business environment of Rajasthan and India as a whole through close cooperation with Japanese agencies such as JETRO, JICA, JVIC, and AOTS. The Embassy of Japan will participate in Invest Rajasthan 2022, scheduled for October this year, and I look forward to working together to boost our bilateral relations.
अशोक गहलोत जी, मंच पर उपस्थित मंत्री राजेंद्र यादव जी, टीकाराम जूली जी और जुबेर खान जी और यहाँ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इसमें राका जी और वीनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि आप इसी तरह इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें। और नीमराना जापानी जोन एक निरंतर निवेश की ओर बढ़ रहा है। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे। सोच है पहली बार ऐसा पूरे देश में, और मेरी जानकारी में तो ये कि पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा, प्रत्येक जिले में रोड शो हुए हों। पहली बार हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी योजना निकाली जिससे कि हमारे प्रत्येक जिले में रोड शो किए गए, वहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे स्थापित हो सके। हमारी गवर्नमेंट की जो योजना MSME हो, रिप्स हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, जिसमें कोई 25 लाख तक का भी इन्वेस्ट करता है तो उसे 8% ब्याज राशि अनुदान है, 5 करोड़ तक का करता है। ऐसे आप हमारी शान है, इसे बढ़ाए रखें। हमारी एक ही मांग है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मैं इतना कहना चाहूँगी, आपको हिंदी शायद नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन माय स्टेट चीफ मिनिस्टर सम्माननीय अशोक गहलोत जी, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कंपनी की ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का वादा करती हूँ आपसे। सिर्फ एक ही मांग होगी कि राजस्थान का यूथ, राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिला, राजस्थान के लोकल स्थानीय लोगों को आप अधिक से अधिक रोजगार देने का काम करेंगे। माई चॉइस इज वन चॉइस, ऑल चॉइस इज प्रॉमिस्ड, ऑल प्रॉब्लम्स इज सॉल्व। माई चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। शकुला रावत जी, तमाम उन 11 कंपनीज को मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो निराश नहीं होंगे। जो रिको के साथ में संबंध है आपका लंबे समय से, जिसका मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया, और ये जापानी जोन बना है, उसमें अगर संयोग से कुलदीप रांका उस वक्त MD थे और विनू गुप्ता जी भी थी, तो दोनों आज एक तो ACS इंडस्ट्री है और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर है। ऐसा संयोग है जिसमें कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जापानी जोन के एक्सपेंशन में इन्वेस्टर जो आएंगे उनकी सुविधा के लिए उनकी परेशानी नहीं हो। इन तमाम बातों का विशेष ख्याल स्वतः रखा जाएगा। और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि वैसे तो जापान और इंडिया का संबंध जो है वो बहुत पुराना है, और जिस रूप में जो कहा जाता है कि कोई जमाने के अंदर जब बौद्ध धर्म जो है वो भी इंडिया से जापान पहुंचा था 6वीं शताब्दी के अंदर। आज जो थाईलैंड में, चाइना में कहीं जाएंगे तो जापान में तो आपको बौद्ध धर्म के चिन्ह मिलेंगे आपको। तो मुझे बताया गया पंडित नेहरू जब 49 के अंदर गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ की जू के लिए एक एलिफेंट भेंट किया था। और 52 से जो डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए, उसके बाद लगातार इंडिया और जापान के बीच में अच्छे संबंध रहे। तो मुझे खुशी है कि जापान ने यहाँ पर जो जोन स्थापित किया है वो आज पूरे प्रदेश के उद्यमी के लिए एक हमेशा चर्चा में रहता है, और लगता है कि जापान आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से जापान का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, इसीलिए जापानी जोन को पूरा महत्व दिया जाता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जापानी कंपनी आएगी, ऐसा माहौल बने। ऐसा माहौल बनाने के लिए अभी जब कमल जी जावा जी बोल रहे थे कि उनकी 2 ही मांगे रहती है, हमारे लोगों का ख्याल रखें
और उनकी सेफ्टी हो। और मैं समझता हूँ कि दोनों मामलों में राजस्थान बेहतर है देश के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि संभावनाएं बहुत हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। और जीरोट में भी जो एक इंडस्ट्री आई है, जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए थे जब जापान, तब ये दिल्ली बम्बई फ्रेट कॉरिडोर और DMIC के बारे में एक शुरुआत हुई थी और भूमिका वहीं बनी। आज वो उम्मीद करते हैं कि फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद में DMIC का जो काम है, ये जापानी जोन भी मुझे बताया गया वही DMIC के पार्ट है। तो बड़े रूप में ये काम होना बाकी है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में DMIC का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ बनना है, चाहे वो अलवर और जोन में हो, चाहे वो पाली जोधपुर हो, 6 जगह बनने की बात है जो नोड बनेंगे। उसमें योजनाबद्ध तरीके से काम हो जिससे कि सामने और इन्वेस्टमेंट ला सकें। हमने सिंगल विंडो एक्ट बनाया, उसका मैं समझता हूँ कि लाभ मिलने लगा लोगों को। जो रिफ्स के माध्यम से छूट दी जाती है स्पेशल पैकेज की, उसमें भी हम लोग मैं समझता हूँ कि जो ऑफर करते हैं उससे इन्वेस्टर को इस बात का संतोष है। और इसीलिए भी विनू गुप्ता जी कह रही थी कि 10 लाख करोड़ के जो MOU हुए उसमें से लोगों ने रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर में जो इन्वेस्ट राजस्थान की बात की जा रही है उसकी तैयारी चल रही है। और आप सबको और विशेष रूप से जो यहाँ बैठे हुए हमारे साथी हैं राजस्थान के हैं और जापानीज की जो कंपनी आ रही है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसमें आप और आपके मित्र लोग पूरी रुचि रखें। जापान के हमारे जो राजदूत आए हैं उनको कहना चाहूँगा कि वो जापान के और इंडस्ट्रीज को सूचित करें हमारी तरफ से कि किस रूप में वो अधिक से अधिक लोग इन्वेस्ट करने की तरफ अट्रैक्ट हो सके राजस्थान के अंदर और जापानी जोन के अंदर। रिफाइनरी जो बन रही है 55 के अंदर, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ का पहले था, अब तो 70,000 करोड़ का हो गया। तो सबसे बड़ी बात है जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और बनेगा आने वाले वक्त के अंदर, उसका इशारा किया हमारे जावा जी ने भी। इस प्रकार से चाहते हैं कि उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं। तो जब अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो संभावना बढ़ जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनना ही बड़ी बात है और माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हो जाएगा। पूरे राजस्थान के नौजवान आ सकते हैं वहाँ पर उद्यमी बन करके, छोटे बड़े, संभावना बहुत ज़्यादा है। मार्केटिंग करने की आवश्यकता है जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इसी रूप में मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने और जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 3 लाख करोड़ की बात की है जेट्रो के सहयोग से, और 11 कंपनी जो आई है तो उसी के अंतर्गत आ रही है। तो शुरुआत राजस्थान से हुई है, अच्छी बात है। और 3 लाख करोड़ का तो पूरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होने की बात है। हम चाहेंगे कि क्योंकि यहाँ पे जोन बन चुका है जापानी, इसलिए यहाँ पर एक माहौल है, उस माहौल से वाकिफ हो चुका है जापानी के इंडस्ट्रिस्ट। उसके बाद में संभावना बढ़ जाती है कि राजस्थान में कैसे इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक जापान का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। मैं भी इस मौके पर आ सका जब MOU साइन हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि
आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा तरीके से अक्टूबर के अंदर जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है उसके माध्यम से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। तो शकुला जी ने अच्छी बात कही कि लोकल लोगों की मांग रहती है कि कैसे उनको रोजगार मिले। इंडस्ट्री के साथ में लोग ये मांग जुड़ी रहती है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी आता है गांव के अंदर भी और कस्बों के अंदर भी। कंवरजीत साहब ने जो बताया कि स्किल डेवलपमेंट का काम भी बड़े रूप में शुरू हुआ, जिसमें लोकल लोगों को भी, यहाँ के गांव के बच्चों को भी सुविधा मिलने लगी है यहाँ पर ट्रेनिंग करने की स्किल डेवलपमेंट में। ये मैं समझता हूँ कि एक शुभ संकेत है कि जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना है उसके माध्यम से और जो उनकी ब्रांचेज हैं, मैं चाहूँगा राजस्थान में और अधिक ब्रांचेज खुले छात्रों के सहयोग से। और कंवरजीत जावा जी से मैं कहना चाहूँगा विशेष रूप से रुचि लें। मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो भावना है, आप खुद गांव में दौरे किए आपने, अभी आपने बताया कि आप शकुला रावत जी के गांव भी गए थे। इसके मायने है कि आपके दिल में जगह है, गांव में जो आदमी रहता है इसके मायने हैं उसका कमिटमेंट है गरीबों के साथ में, गाँव के साथ में, आम आदमी के साथ में। उनको लगता है कि ये बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, चाहे वो इन्वेस्टर कितनी बड़ा हो, परंतु लोकल लोगों को काम नहीं मिलता है। उद्यमी देखता है कि अगर लोगों को काम दे दिए तो हड़ताल होने लग जाएगी, हम कहाँ हड़ताल से निपटेंगे, तो बाहर के लोग लाके लगाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो हल होनी चाहिए और लोग में फ्रस्ट्रेशन नहीं आए, इस रूप में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है और 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है, तो उसी के रेशियो में स्किल डेवलपमेंट का काम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में आगे बढ़े। स्टेट गवर्नमेंट भी और इनको भी मैं समझता हूँ कि हमारे विनोद गुप्ता जी बैठे हुए हैं, कुलदीप जी से कहना चाहूँगा कि इसमें हम सोचें क्या हम लोग इनके साथ मिलकर के या अलग से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय तक बन चुका है, तो उसमें हम लोग किस प्रकार भागीदार निभाएं जिससे कि जहाँ इंडस्ट्री लगे वहाँ स्किल डेवलपमेंट के साथ में बच्चों को सहयोग मिल सके और उनको अवसर देने के काम करने का।